So everyone is here, right? Okay. So someone has not joined. I think Sudhanshu has not joined and Pratik has not joined. है ना? So what does Stokes law say? Stokes law says that when a solid body moves through a fluid, solid body moves through a fluid, moves through a fluid. ठीक है ना? तो solid body जब fluid में move करता है, the fluid in contact with the solid is dragged with it. The fluid or the fluid layer है ना, in contact with the solid is dragged with it. Is dragged with it है ना? तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटीज आर एस्टेब्लिश्ड है ना बिटवीन द layers of the fluid near the solid है ना. So basically क्या होता है, relative velocity is established. After that is established between the layers of the liquid and liquid near the solid, near the solid है ना. So basically relative velocity is established between the layers of the liquid near the solid, right? So that viscous forces है ना start or come into action. Okay, okay. And तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है ना बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड नॉट सॉलिड है ना. ठीक है. अब सॉलिड के साथ अगर फ्लूइड लेयर जो है वो ड्रैग होके जाएगा तो फिर ना तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है और वो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से है ना विस्कस फोर्स भी आ जाएगा है ना. सो एंड विस्कस फोर्स स्टार्ट ऑपरेटिंग है ना. तो अभी वहां पे क्या होता है कि विस्कस फोर्स भी आ जाता है, दे स्टार्ट ऑपरेटिंग देयर है ना. समझ में आ रहा है? ठीक है ना. So fluid exerts viscous force on the solid to oppose the motion of the solid. ठीक है ना. तो फिर वहां पे क्या होगा ना, फ्लूइड अभी जो है ना, the fluid in contact with the solid, the fluid in contact with the solid, contact with the solid है ना, exerts viscous force on the solid and up to oppose its motion. Now this exerts viscous force on solid and
opposes its motion, ठीक है ना. So I can say that the magnitude of force on the solid, the magnitude of force on the solid, the magnitude of force on the solid, है ना, depends on the shape and size of the solid body, depends upon its shape and size, है ना, और उसके वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, and will also depend upon its velocity. समझ में आया, ठीक है ना. And coefficient of viscosity, and coefficient of viscosity. तो सॉलिड बॉडी के ऊपर जब वो लिक्विड में फ्लो में है, when a solid body is in flow in a liquid, है ना, so there are various forces, there will be viscous forces acting on the solid body, and the viscous force acting on the solid body will depend on its shape and size, its velocity and coefficient of viscosity, its velocity and coefficient of viscosity. ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, ठीक है. तो that is, so what is Stokes law then? Now Stokes law says that for a spherical solid body of radius r, है ना, ठीक है ना. तो स्टोक्स लॉ बेसिकली क्या है, कैन यू गो टू द नेक्स्ट पेज बच्चों? यस सर. इतना लिख Yes, रहे sir. तुमने. तो फिर स्टोक्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर अ स्फेरिकल बॉडी. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ is specifically for a spherical body. अच्छा, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ जो है स्फेरिकल बॉडी के लिए, दैट इज एक काम करते हैं, डायग्राम बन गया बच्चों? यस सर. ठीक है ना, डायग्राम बन गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली है ना, फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, फॉर अ स्फेरिकल बॉडी of mass m, radius r, radius small r, है ना, and instantaneous velocity v,
for a spherical body of mass m, radius r and instantaneous velocity v, और क्या है उसका instantaneous velocity है v, है ना, moving in a viscous fluid, it's actually moving in a viscous fluid of coefficient of viscosity eta. Moving in a viscous fluid of coefficient of viscosity eta, है ना, तो वहां पे क्या होगा, the viscous force acting on it is F equal to 6 pi eta RV, तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू F is equal to 6 pi eta RV. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो व्हाट इज R? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। अच्छा ये सब तो ना हमने लिख लिया ना, तो बेसिकली ये जो है दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ, बेसिकली इसी को स्टोक्स लॉ बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है विस्कस फोर्स का, इसी को स्टोक्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। The next thing or the next concept that we will study here is that is terminal velocity, ठीक है बच्चों, है ना। Yes, sir. So basically what is terminal velocity? ये अपना टर्मिनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों। ओके, सो व्हाट इज दिस टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि सपोज, है ना, ये जो मतलब है ना, अगर मान लो सॉलिड है, स्फेरिकल बॉडी है, इसका वेलोसिटी भी है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर तो एक तो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, एक तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना बच्चों। सो बेसिकली इसके ऊपर लगा एक विस्कस फोर्स लगा ऊपर, है ना, ये लगा इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, विस्कस फोर्स लगा ऊपर, ठीक है ना, फिर उसको छोड़ के here we go again, है ना, तो यहाँ पे भी कुछ है ना उसके ऊपर फोर्स डेफिनेटली लगेगा, है ना, दैट इज द बॉयंट फोर्स बी, है ना, और उसका वेट भी नीचे आ रहा है,
वेट जो है वो नीचे लग रहा है mg, ठीक है ना। तो वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ना। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एज शोन इन द फिगर, है ना। सो बेसिकली इफ आई से equation of motion of the body as shown in the figure, equation of motion, है ना, of the body as shown in the figure, है ना। So basically what is the equation of motion of the body as shown in the figure, ठीक है ना बच्चों। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे, नेट फोर्स तो डाउनवर्ड्स आ रहा है, अगर वो नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी है, एक तो नीचे आ रहा है डाउनवर्ड फोर्स mg, माइनस ऊपर आ रहा है बॉयंट फोर्स, और ऊपर आ रहा है अगेन विस्कस फोर्स, that is equal to mass into acceleration. Fv is viscous force ना, यहाँ पे तो लिखा है बेटा Fb is equal to 6 pi eta Rv, मतलब ये विस्कस फोर्स है ना। तो बेसिकली दो चार चीजें हैं यहाँ पे। Fv, Fb का मतलब है विस्कस फोर्स, फिर मान लो बी का मतलब है बॉयंट फोर्स, mg का मतलब है वेट, और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। Yes, Fv sir. हो गया विस्कस Yes, sir. फोर्स, ठीक है ना। बी हो गया बॉयंट फोर्स, बी हो गया बॉयंट फोर्स, mg हो गया वेट, है कि नहीं बच्चों। सो नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स mg माइनस बॉयंट फोर्स माइनस विस्कस फोर्स, कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं बच्चों। सो mg माइनस बॉयंट फोर्स, वैल्यू है ना, बॉयंट फोर्स क्या होगा, बॉयंट फोर्स विल बी इक्वल टू okay, I'll again give you some more quantities here. One is rho, rho is density of solid, sigma is density of, sorry, rho is density of liquid, sigma is density of solid, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो क्वांटिटीज हैं, एक तो रो है ना, फिर और एक उसके नीचे और एक क्वांटिटी है सिग्मा, these are densities, this is density of fluid, और ये क्या है, दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना बच्चों। सो mg माइनस 4 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, बॉयंट फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस विस्कस फोर्स 6 पाई इटा आर वी, है ना, समझ में आया ना, ठीक है। माइनस मास, ठीक है ना, माइनस मास, मास क्या होगा, मास ऑफ द सॉरी, और दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू 4/3, सिग्मा इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, m में आई कैन राइट इट एज दिस इज सिग्मा इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 को फिर से एनालाइज करते हैं ना। तो देखो बच्चों, ये जो mg माइनस बॉयंट फोर्स है और माइनस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वांटिटी है टोटल mg माइनस बॉयंट फोर्स, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, Yes, sir. ये तो चेंज नहीं होगा। एक बॉडी के ऊपर उसका जो वेट है वो कांस्टेंट है, और एक बॉडी जब है ना ऑलरेडी इट इज इनसाइड द फ्लूइड, इट इज डिप्ड इनसाइड द फ्लूइड, है ना। तो कंप्लीट इमर्शन में उसके ऊपर जितना पॉइंट फोर्स आ रहा है वो भी तो
है ना, वो भी तो एक है ना कांस्टेंट फोर्स है ना, कंप्लीट इमर्शन में जितना पॉइंट फोर्स आ रहा है, लेकिन क्योंकि बॉडी नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, सिंस बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, है ना, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सिंस द बॉडी इज इन एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बॉडी एक्सीलरेशन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो विस्कस फोर्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग क्वांटिटी। तो अगर ना, तो mg माइनस बॉइंट फोर्स कांस्टेंट है, उसमें से हम क्या करें, इंक्रीजिंग क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, उसमें से हम एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी फ्रॉम देयर, ठीक है ना। अगर हम माइनस करेंगे इंक्रीजिंग क्वांटिटी को, तो फिर ओवरऑल जो है क्वांटिटी वो डिक्रीज करेगा कि नहीं? ओवरऑल जो Yes, है sir. वो डिक्रीज करेगा कि नहीं? तो Yes, sir. ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो डिक्रीजिंग क्वांटिटी हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो बेसिकली सिंपल बेसिक से बच्चों, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक तो क्वांटिटी है हमारे पास mg, उसमें से बॉइंट फोर्स को हमने माइनस किया, माइनस विस्कस फोर्स which is an increasing quantity is equal to mass into acceleration, है ना, ठीक है। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, एक क्वांटिटी इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट से इंक्रीजिंग क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनो ना, ध्यान से मेरा बात सुनना सुनो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। इसी चीज को ना मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा फिर से अभी तुम्हारे साथ, है ना। बात ये है कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है बेसिकली, है ना, क्या हो रहा है कि एक तो वेट के वजह से वो नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहे हैं तो ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर? विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर। तो ऊपर कौन कौन से फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं? ऊपर उसके ऊपर लग गए क्या? विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स। अब ऊपर अगर उसके ऊपर विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स लग गए, समझ आया ना, अगर ऊपर उसके ऊपर विस्कस फोर्स भी लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, ठीक है ना, तो mg माइनस बॉइंट फोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि बेसिकली इनिशियली तो mg ज्यादा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि बॉइंट फोर्स और जो विस्कस फोर्स है ना, आप ऐसे भी देख सकते हैं, है ना, जो बॉइंट फोर्स है और विस्कस फोर्स है, mg माइनस ऑफ बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। mg बेसिकली इनिशियली इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इनिशियली mg इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, सो देयर विल बी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा, विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा तो, है ना, तो फिर बेसिकली क्या हो रहा है, विस्कस फोर्स इज एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी, mg माइनस बॉइंट फोर्स इज अ डिक्रीजिंग, इज अ कांस्टेंट, तो विस्कस फोर्स एक्चुअली माइनस हो रहा है यहाँ पे इक्वेशन में ना, कहां से? mg माइनस बॉइंट फोर्स से। तो विस्कस फोर्स पड़ेगा, अगर विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा तो मैं ये बोल सकता ना, ये mg तो कांस्टेंट है, बॉइंट फोर्स भी कांस्टेंट है, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो ये बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ये क्वांटिटी एज ए होल इंक्रीज कर रहा है। Fv is increasing although buoyant force is constant, so buoyant plus viscous force, so वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पार्टिकल के ऊपर जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। Yes, जब sir. नेट अपवर्ड Yes, फोर्स sir. इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स तो कांस्टेंट है,
डाउनवर्ड वाला फोर्स कांस्टेंट है, अपवर्ड वाला फोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है ये डिक्रीज कर रहा है। नेट डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज करने का मतलब है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है। नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे मतलब है ना, डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज करने का मतलब है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. लेकिन भले ही एक्सीलरेशन डिक्रीज करे, लेकिन जब तक एक्सीलरेशन है, ऑल्दो एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, बट है ना, व्हेन द पॉइंट यू हैव टिल द पॉइंट यू हैव गॉट एक्सीलरेशन, है ना, वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। बेसिकली क्या हो रहा है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन जब तक एक्सीलरेशन तब तक तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना, और जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा फिर विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा। जैसे विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा, ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है, पॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, वो इंक्रीज होगा, है ना। पॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, तो उसका अगर हम डिफरेंस लेंगे वेट से, तो बेसिकली क्या होगा कि मतलब है ना कि वो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इसकी वजह से डिक्रीज कर रहा है। जिस पॉइंट में नेट फोर्स जीरो हो गया, तो एक पॉइंट पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना। एक पॉइंट में क्या होगा कि ये बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा कि ये बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, समझ में आया ना, ये जो बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स की क्वांटिटी है, ये mg को बैलेंस कर लेगा, ये mg के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना? Yes, sir. अच्छा, Yes. ये अगर mg के, ये जब mg के बराबर होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। Yes, sir. नेट फोर्स जीरो हो गया तो नेट एक्सीलरेशन जीरो, Yes, नेट sir. फोर्स जीरो तो Yes, नेट sir. एक्सीलरेशन जीरो, Yes, sir. नेट एक्सीलरेशन जीरो, the velocity will not change further। Yes, sir. velocity further change करेगा क्या? No, sir. No, sir. velocity will not change further because it becomes a constant quantity। Yes, sir. तो जो अब तो इसका मतलब है फाइनली जो वेलोसिटी आ गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। द फाइनल वेलोसिटी व्हिच बिकम्स अ कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज, व्हिच बिकम्स अ अनचेंजिंग क्वांटिटी, है ना, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I can say that terminal velocity में क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होगा, बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी में mg minus buoyant force minus fv is equal to 0, है ना। when net force becomes 0, net force on solid becomes 0, becomes 0, terminal velocity is attained। तब क्या होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है is attained। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है। Yes. Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, mg क्या था, mg इज इक्वल टू m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4/3 पाई r क्यूब g माइनस बॉयंट फोर्स रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब g माइनस बॉयंट फोर्स माइनस विस्कस फोर्स 6 पाई इटा r vt। मैंने v के जगह vt ले लिया, वेयर ना vt is called terminal velocity। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, Yes, sir. तो इस इक्वेशन को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस 6 पाई इटा आर वी टी इक्वल टू 0। सो पाई पाई एंड पाई
let us cancel them, right? Now r cube की जगह आ जाएगा r square, यहाँ पे अगेन r क्यूब की जगह आ जाएगा r square, यहाँ पे r को कैंसिल कर लो, ठीक है ना बच्चों? तो अगेन I can cancel this out also, that is 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, so I can say that implies sigma 2 sigma by 3 r square g minus 2 rho by 3 r square g is equal to 3 eta vt, है ना? So that implies 2 by 3 r square g whole into sigma minus rho is equal to 3 eta vt. So what is terminal velocity then? Imply is vt is equal to 2 by 9 2 r square g by 9 eta, है ना? Whole into sigma minus rho. So that's all. समझ में आ रहा है बच्चों?